friends, welcome to Chemistry Champs. In this video we are learning structures of atom and this is the unit 2nd of class 11. So start with subatomic particles. From the several experiments, scientists have proved that atoms जो होते हैं वो सबसे smallest particle नहीं होते हैं. जो atoms होते हैं वो एक complex structure होता है जो कि बना हुआ होता है इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन से. सो जो दीज पार्टिकल्स है इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन, सो इसको हम कहेंगे सब एटॉमिक पार्टिकल्स. नाउ वी मूव ऑन टू द एटॉमिक मॉडल. सो हाउ टू डिस्ट्रीब्यूट दीज इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन इन एन एटम. तो हम इन इलेक्ट्रॉन को कैसे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे एक एटम के अंदर. तो यहाँ पे कुछ मॉडल्स दिए गए थे कुछ साइंटिस्ट के द्वारा. So first model is Thomson model of atom and second is Ernest Rutherford model, nuclear model of atom. So start with Thomson model of atom. Thomson model of atom. So this model is given by J.J. Thomson in 1898. So according to this model, atom is acquired a spherical shape in which positive charge is uniformly distributed. So this is an atom which has a spherical shape and in which positively charged is uniformly distributed and in this electron are embedded into it. So थॉमसन ने ये कहा था जो एटम होगा वो स्फेरिकल शेप का होगा और उसके ऊपर जो स्फेरिकल शेप होगा उसके ऊपर पॉजिटिवली जो चार्ज होंगे वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट होंगे और जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे इस एटम के अंदर प्रेजेंट होंगे और उनके बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होगा. नाउ वी मूव ऑन टू द रदरफोर्ड मॉडल. Rutherford model. So this is given by Ernest Rutherford and his some students. So according to this, अकॉर्डिंग टू दिस मॉडल यहाँ पे कोई भी अल्फा पार्टिकल्स प्रेजेंट होंगे या फिर कोई सोर्स होगा जिससे हम लाइट स्कैटरिंग कराएंगे. सो यहाँ से लाइट निकलेगी और यहाँ पे कोई भी एक हैवी मेटल प्रेजेंट होगा लाइक गोल्ड, सिल्वर, प्लेटिनम, कॉपर. सो यहाँ पे है प्लेटिनम और जब ये इसके ऊपर इस फॉइल के ऊपर, ये बहुत ही थिन फॉइल होता है, इसके ऊपर टकराएगी तो ये जो लाइट होगी यहाँ पे जो हमारा मॉलिक्यूल होगा यहाँ पे टकराएगी फिर और ये लाइट स्कैटर हो जाएगी इन हर डायरेक्शन में. तो अकॉर्डिंग टू दिस मॉलिक्यूल वी गिव एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन एंड लाइट स्कैटरिंग प्रोसेस. नाउ अकॉर्डिंग टू दिस मॉडल there are some conclusion and observation are produced. So first is this: positively charged is considered in a small region and it is concentrated. So this is called nucleus. And second is around this nucleus there are some electrons present which are uniformly distributed and move around a circular path. So this is called orbit. And third is
between these electrons and these nucleus, there are some electrostatic force of attraction are produced. So what is electrostatic force? So electrostatic force are the attractive or repulsive force which are present from some electric charge. Now we consider some drawback. So what is the drawback of Rutherford model? So according to this model, there are electrons present in a circular orbit and which move in a circular path. So due to movement of these electrons, there are some acceleration is produced. Because यहाँ पे जो ये इलेक्ट्रॉन्स है वो रिवॉल्व कर रहे हैं न्यूक्लियस के अराउंड, तो यहाँ पे एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो जाएगा. एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो जाएगा तो इलेक्ट्रॉन की जो एनर्जी है वो एकदम से गिर जाएगी, फॉल डाउन हो जाएगा वो न्यूक्लियस के अंदर. तो जिसकी वजह से मॉलिक्यूल के अंदर जो एटम की है वो स्टेबिलिटी है वो नहीं रहेगी. तो ये वाली जो चीज है स्टेबिलिटी ऑफ एन एटम, वो रदरफोर्ड मॉडल ने एक्सप्लेन नहीं की थी, तो ये इसका ड्रॉबैक है. Okay, now we move on to the representation of a molecule. How to represent a molecule? Representation of element. So किसी भी एलिमेंट को रिप्रेजेंट करने के लिए सबसे पहले उसका सिंबल यूज किया जाता है. फॉर एग्जाम्पल, दिस इज सिंबल. X is symbol and Z is the atomic number and this is written in subscript. So in subscript, and A is the atomic mass, so it is written as superscript. So ये हमारा हो जाएगा atomic number और ये हो जाएगा एटॉमिक मास. फॉर एग्जाम्पल, अगर यहाँ पे लिथियम का एटम प्रेजेंट है, तो यहाँ पे X की जगह हम लिखेंगे लिथियम और इसका जो एटॉमिक नंबर होता है वो होता है 3. सो यहाँ पे लिखेंगे 3 एंड एटॉमिक मास होता है लिथियम का वो होता है 7. तो इस तरह हम किसी भी एलिमेंट का जो है ऐसे सिंबल लिखते हैं. नाउ वी मूव ऑन टू द बोहर्स मॉडल. सो यहाँ पे जो बोहर ने ना जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन थी उसको कुछ उसमें चेंजेस किए थे और उसको इम्प्रूव किया था. तो यहाँ पे हमको दो पोस्टुलेट्स मिलेंगे. सो फर्स्ट इज वेव नेचर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन. एंड सेकंड हमको मिलेगा पार्टिकल नेचर. पार्टिकल नेचर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन. सो स्टार्ट करते हैं वेव नेचर से. So this is given by Maxwell in 1870. So wave nature is explained by Maxwell in 1870. So according to this, if there are some electrons are present which are in accelerating, so there are some magnetic field and electric field are generated and these are transmitted into waveform and these are called electromagnetic radiations or electromagnetic waves. So according to Maxwell, यहाँ पे क्या हुआ था, जो इलेक्ट्रॉन्स है जिनकी वजह से एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हुआ है, तो यहाँ पे इनकी वजह से अपने आप मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड है वो जनरेट हो जाएगा, जिसकी वजह से ये जो है ट्रांसमिट हो जाएगी वेव फॉर्म में और इसको हम कहेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक
रेडिएशंस और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। ठीक है, तो इसको हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? So displacement from the maximum upward to the displacement is known as thrust, and maximum downward displacement is called trough. And so this is the maximum displacement upward, so this is called thrust, and this is also thrust because there is upward in displacement and downward in displacement, so this is called trough. So there are some characteristics of these waves. So first is wavelength, second is frequency, third is velocity, and fourth is wave number. So first is wavelength. So what is wavelength? So this is our wave. So we can say that distance between two crust or two adjacent trough are called wavelength. So ये हमारी फर्स्ट ट्रफ है और ये सेकंड क्रस्ट है, ये फर्स्ट क्रस्ट एंड दिस इज सेकंड क्रस्ट। सो इनके बीच की जो डिस्प्लेसमेंट होगी वो होगी वेवलेंथ, और इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं लैम्डा से। सो इट इज द डिस्टेंस बिटवीन टू एडजेसेंट क्रस्ट और ट्रफ, एंड इसकी जो यूनिट होगी वो होगी मीटर। और इसको हम बेसिकली जो मेजर करते हैं वो एंगस्ट्रॉम में मेजर करते हैं, और उसको सिंबल है ए नॉट, और इसकी जो वैल्यू होती है वो होती है 10⁻⁻8 सेंटीमीटर। अगर इसको मीटर में कन्वर्ट करना है तो 10⁻⁻10 मीटर। नाउ द सेकंड फैक्टर इज फ्रीक्वेंसी। Frequency is the number of waves passing in a given point in a 1 second. तो फ्रीक्वेंसी वो होती है, इसमें ये जो पॉइंट है इसमें से कितनी नंबर ऑफ वेव्स ने 1 सेकेंड के अंदर पास किया है, तो उसको हम बोलेंगे फ्रीक्वेंसी। और इसकी जो यूनिट होती है वो होती है साइकिल पर सेकेंड, और पर सेकेंड भी लिख सकते हैं। और इसकी जो एसआई यूनिट होगी वो होगी हर्ट्ज, और इसका सिंबल होता है HZ। नाउ द थर्ड फैक्टर इज वेलोसिटी। सो वेलोसिटी क्या होगी? डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द वेव। सो किसी भी वेव का उसने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया है 1 सेकेंड के अंदर, तो उसको हम बोलते हैं वेलोसिटी। और इसको हम वेलोसिटी या फिर स्पीड ऑफ लाइट भी कहते हैं, उसको रिप्रेजेंट करते हैं हम c से, और इसकी जो वैल्यू होती है वो है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ठीक है, और इसकी यूनिट है मीटर पर सेकेंड। नाउ द फोर्थ फैक्टर इज वेव नंबर। सो वेव नंबर का जो सिंबल होता है वो होता है न्यू बार। सो वेव नंबर क्या होगा? इट इज द वेवलेंथ पर यूनिट लेंथ। सो इसकी जो डेफिनेशन होगी वो होगी वेवलेंथ पर यूनिट लेंथ कितनी है। सो इसकी यूनिट क्या हो जाएगी? रेसिप्रोकल ऑफ वेवलेंथ। सो वेवलेंथ की क्या यूनिट थी? वेवलेंथ की यूनिट थी मीटर, तो इसकी रेसिप्रोकल लेनी है तो इसकी यूनिट हो जाएगी पर मीटर। ठीक है, तो अब हम रिलेशन देखते हैं इनके बीच का। सो C इज इक्वल्स टू न्यू इंटू लैम्डा, ये इनके बीच का रिलेशन होता है। वेलोसिटी इज इक्वल्स टू, दिस इज वेवलेंथ एंड दिस इज फ्रीक्वेंसी। सो अब यहां पे क्या होगा?
हम अगर यहाँ पे न्यू की वैल्यू निकालते हैं, न्यू इज इक्वल टू सी बाय लैम्डा, एंड जो 1 बाय लैम्डा होता है वो इक्वल होता है न्यू बार के। सो अब 1 बाय लैम्डा, तो यहाँ पे हम पुट कर देंगे दिस इज 1 बाय लैम्डा, सो दिस इज न्यू बार, सो न्यू इज इक्वल टू सी इंटू न्यू बार। सो दीज आर सम रिलेशंस बिटवीन frequency, wavelength and speed. So now we move on to the some examples. तो अब हम कुछ एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे। कुछ एग्जाम्पल सॉल्व करते हैं। एग्जाम्पल है द वेवलेंथ रेंज ऑफ विजिबल स्पेक्ट्रम एक्सटेंड फ्रॉम वॉयलेट 400 नैनोमीटर टू रेड 750 नैनोमीटर। एक्सप्रेस दीज वेव इन फ्रीक्वेंसी एंड 1 नैनोमीटर इज इक्वल टू 10 टू पावर 9 मीटर। सो ये जो फ्रीक्वेंसी हमको दी हुई है वॉयलेट एंड रेड रीजन की, इसको हमको फ्रीक्वेंसी में चेंज करना है। तो ये हम कैसे कर सकते हैं? फ्रीक्वेंसी होती है न्यू एंड दिस इज इक्वल्स टू सी डिवाइडेड बाय लैम्डा, क्योंकि जो हमने रिलेशन पढ़ा था वो था सी इज इक्वल्स टू न्यू इंटू लैम्डा। अगर यहां से हम न्यू की वैल्यू निकालते हैं तो ये हो जाएगा न्यू इज इक्वल टू सी बाय लैम्डा। सो जो सी की हमारी जो वैल्यू है वो कितनी होती है? 3 इंटू 10 टू पावर 8 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, ये वेलोसिटी की या स्पीड ऑफ लाइट की वैल्यू होती है। और लैम्डा हमको इन्होंने दिया है 400 नैनोमीटर। सो इन्होंने दिया है 400 नैनोमीटर। इसको अब हमको कन्वर्ट करना है मीटर में। सो 400 को अब हम मल्टीप्लाई कर दे अगर 10 टू पावर 9 से, सो ये मीटर में कन्वर्ट हो गया। सो ये हमारी वेवलेंथ की वैल्यू हो गई। सो यहाँ पे हम पुट कर देंगे। सो 400 इंटू 10 टू पावर -9 मीटर। सो इसको हम क्या लिख सकते हैं? 3 इंटू 10 टू पावर 8 मीटर पर सेकेंड एंड दिस इज 4 इंटू, इसको 4 अलग लिख लिया एंड 10 टू पावर 2 इंटू 10 टू पावर -9 मीटर। 3/4 इंटू 10 टू पावर, ये -9 है और ये +2 है, सो -9 + 2 -7 एंड डिवाइडेड बाय 10 टू पावर -7। सो 3/4 इंटू, और ये पावर जब ऊपर जाएगी तो प्लस भी हो जाएगी, 10 टू पावर 8 + 7 एंड 3 को हम जब 4 से डिवाइड करेंगे तो 0.75 समथिंग इंटू में 10 टू पावर 15। तो अब हम अगर एक डेसिमल राइट की तरफ शिफ्ट कर दे तो क्या हो जाएगा? 7.5 इंटू 10 टू पावर 14, क्योंकि हमने एक डेसिमल शिफ्ट किया है तो यहां से एक पावर कम हो जाएगी। तो ये हमारी वैल्यू आ जाएगी और ये होगी हर्ट्ज में, क्योंकि फ्रीक्वेंसी हम हर्ट्ज में ले रहे हैं। ठीक है, तो अब हम एक तो वैल्यू ये निकलाई 400 वॉयलेट रीजन की, अब हम निकालते हैं रेड रीजन की। सो इसी फॉर्मूले में हम पुट करते हैं। सो सी की जो वैल्यू होगी 3 इंटू 10 टू पावर 8 मीटर पर सेकेंड डिवाइडेड बाय लैम्डा की होगी 750 इंटू 10 टू पावर -9। यहाँ पे हमने इसको मीटर में कन्वर्ट कर दिया है। ठीक है, तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा 4 इंटू 10 टू पावर 14 हर्ट्ज। ठीक है, तो एक तो वैल्यू हमारी आ गई ये रेड रीजन के लिए, और ये आ गई वॉयलेट के लिए। सो इसका जो रीजन होगा कितने से कितना होगा? 4 इंटू 10 टू पावर 14 हर्ट्ज टू 7.5 इंटू 10 टू पावर 14 हर्ट्ज। इन फ्रीक्वेंसी में हमने ये निकाल दिया। सो अब हम नेक्स्ट एग्जांपल सोल्व करते हैं। Now the second example is calculate the wave number and the frequency of yellow radiation having wavelength 5800 एंगस्ट्रॉम। सो अब हमको यहां से वेव नंबर निकालना है। सो वेव नंबर, सो वेव नंबर किसके इक्वल होता है? 1 बाय लैम्डा।
सो यहाँ पे लैम्डा की हमारी वैल्यू है एंगस्ट्रोम में। सो सबसे पहले हम इसको मीटर में कन्वर्ट करेंगे। सो 5800 और एंगस्ट्रोम कितना होता है 10⁻⁻10 मीटर। तो अब हम इसको कन्वर्ट करेंगे 10⁻⁻10, ये मीटर में कन्वर्ट हो गया मल्टीप्लाई करने के बाद। ये हमारी वेवलेंथ की वैल्यू है, तो यहाँ पे हम पुट कर देंगे। सो 1 डिवाइडेड बाय 5800 इंटू 10⁻⁻10 मीटर। ठीक है, तो अब हम इसको और क्या लिख सकते हैं 1/58 इंटू 10⁻2 इंटू 10⁻⁻10 मीटर। सो यहाँ पे 1/58 इंटू एंड -10 प्लस 2, so this is -8, so 10⁻⁻8 meter. So this is equals to 0.01724 into 10⁻, और ये जब पावर ऊपर जाएगी तो प्लस में हो जाएगी, तो दिस इज 8, एंड ये जो मीटर है वो भी अपोन में है, जब ये ऊपर जाएगा तो रेसिप्रोकल हो जाएगा पर मीटर। सो अब यहां से हम इस डेसिमल को अगर 1-2 शिफ्ट करें तो ये क्या हो जाएगा 1.724 इंटू 10⁻, यहां से 2 पावर लेस हो जाएंगी 6 पर मीटर। तो ये हमारी हो जाएगी वेव नंबर की वैल्यू। ठीक है, तो अब हम निकालते हैं यहां से फ्रीक्वेंसी। सो अभी यहां से हमको निकालनी है फ्रीक्वेंसी ऑफ येलो रेडिएशन। सो फ्रीक्वेंसी, जैसे हमने फ्रीक्वेंसी पहले एग्जांपल में निकाली थी, क्या होती है न्यू इज इक्वल्स टू c/लैम्डा, और c की वैल्यू हमारी है 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड, और हमारी वेवलेंथ की वैल्यू हमने यहाँ पे मीटर में कन्वर्ट कर रखी। सो 5800 10⁻⁻10 मीटर। तो यहाँ से मीटर कट जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे 3 इंटू 10⁸ डिवाइडेड बाय 58 इंटू 10⁻2 -10, सो दिस इज -8 एंड देयर इज पर सेकेंड। एंड जब हम इसको सोल्व करेंगे तो यहां से वैल्यू आएगी 0.5172 इंटू 10⁻, और ये जब पावर ऊपर में जाएगी 8 + 8, सो दिस इज इक्वल टू 0.5172 इंटू 10⁻8 और 16। सो अब हम इस डेसिमल को एक यहाँ पे शिफ्ट कर दे तो क्या आ जाएगा 5.172 इंटू 10⁻15 हर्ट्ज, बिकॉज हम फ्रीक्वेंसी जो है हर्ट्ज में लेते हैं और इसकी यूनिट पर सेकेंड भी होती है। नाउ वी मूव ऑन टू द नेक्स्ट एग्जांपल। Example is a hypothetical electromagnetic wave is shown in figure and find out the wavelength of a radiation. So we know that wavelength जो होती है वो होती है distance between adjacent two crust and trough. So ये जो वैल्यू होगी वो होगी लैम्डा। सो हमको ये फाइंड आउट करनी है। सो हमको ये वैल्यू दी गई है 2.16 पिकोमीटर। ठीक है, सो ये हमारी वैल्यू है इतनी। ठीक है, सो ये एम्पलीट्यूड की हाफ है और यहाँ पे भी हमारा एम्पलीट्यूड है। सो ये हाफ एम्पलीट्यूड भी इसके इक्वल हो जाएगा और ये वाला हाफ भी इसके इक्वल हो जाएगा, और यहाँ पे हाफ जो है ये इसके इक्वल हो जाएगा। सो 1, 2, 3 एंड 4। सो 4 इंटू 2.16, क्योंकि यहाँ पे 4 टाइम्स हमारी ये वाली वैल्यू प्रेजेंट है, तो यहाँ पे 8 पॉइंट समथिंग वैल्यू आ जाएगी, तो वो हमारी वैल्यू होगी वेवलेंथ की। सो अब हम यहाँ पे कुछ प्रॉपर्टीज डिस्कस करते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की। सो वेव्स जो होती हैं बहुत ही कॉम्प्लेक्स होती हैं, इसलिए हम उसकी थोड़ी सी जनरल प्रॉपर्टीज जो हैं वो डिस्कस करते हैं। तो अगर हम
ये x डायरेक्शन है एंड ये z एंड y। सो जो वेव होगी दिस इज लाइक दिस। सो ये तो हमारा हो गया मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। और ठीक है, और यहां से ये हो गया हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इसमें जो मैग्नेटिक फील्ड और जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो एक दूसरे के ऊपर परपेंडिकुलर होता है, ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड इज परपेंडिकुलर टू इलेक्ट्रिक फील्ड। एंड द सेकेंड प्रॉपर्टी इज, जो ये वेव्स होती है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, इनको किसी भी मीडियम की जरूरत नहीं होती ट्रेवल करने के लिए। सो नो मीडियम रिक्वायर्ड। नाउ द थर्ड इज, सो अलग अलग वेव्स के लिए यहाँ पे अलग अलग रीजन है, जैसे कि माइक्रोवेव रीजन। सो अलग अलग रीजन यहाँ पे दिए हुए हैं इन वेव्स के लिए। और अगर हम इन वेव्स के रीजन को अगर इंक्रीजिंग वेवलेंथ और डिक्रीजिंग फ्रीक्वेंसी में लिखे तो इसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। सो अब हम देखते हैं। सो थर्ड फैक्टर इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम, ठीक है। तो अब हम देखते हैं ये रीजन कैसे डिवाइडेड होते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पे नेम लिख लेते हैं। नेम, यहाँ पे फ्रीक्वेंसी और यहाँ पे वेवलेंथ। सो सबसे पहले बात करते हैं रेडियो वेव से। सो रेडियो वेव, सेकंड इज माइक्रोवेव, थर्ड इज इंफ्रारेड and fourth is visible, fifth is ultraviolet and next is X-rays and next is gamma rays। सो जो फ्रीक्वेंसी की जो वैल्यू होती है वो 10 टू पावर 5 से स्टार्ट होती है, 10 टू पावर 5 टू 10 टू पावर 8। नाउ जो माइक्रोवेव रीजन की जो वैल्यू होती है 10 टू पावर 9 टू 10 टू पावर 11। इंफ्रारेड की जो होती है 10 टू पावर 12 टू 10 टू पावर 13। और विजिबल की जो होती है 10 टू पावर 13 टू 10 टू पावर 14। अल्ट्रावायलेट की जो होगी 10 टू पावर 15 टू 10 टू पावर 16। एक्स रेज की जो वैल्यू होगी 10 टू पावर 17 टू 10 टू पावर 19। एंड जो गामा रेज की वैल्यू होगी 10 टू पावर 20 टू 10 टू पावर 21। और जो वेवलेंथ की रेंज, जो वेवलेंथ की रेंज होगी वो होगी 10 टू पावर -2। एंड माइक्रोवेव रीजन के लिए 10 टू पावर -2 एंड इंफ्रारेड के लिए 10 टू पावर -4 एंड विजिबल के लिए 10 टू पावर -6। अल्ट्रावायलेट रीजन के लिए 10 टू पावर -7, एक्स रेज के लिए 10 टू पावर -10 एंड गामा रेज के लिए 10 टू पावर -12। तो ये होती है ये इसकी फ्रीक्वेंसी रेंज है और ये इसकी वेवलेंथ रेंज है। तो अब हम इसको अगर इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखना चाहें तो कैसे लिखेंगे? सबसे पहले हमारे पास आएंगी कॉस्मिक रेज, देन उसके बाद गामा रेज, गामा के बाद एक्स रेज के बाद अल्ट्रावायलेट मीन्स टू से यूवी एंड इसके बाद विजिबल के बाद इंफ्रारेड IR and then microwave
एंड इसके बाद आएगी हमारी रेडियो वेव्स। सो ये हो गया इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन इन वेवलेंथ रेंज। ठीक है, अब इसकी लिमिटेशन हम पढ़ लेते हैं। लिमिटेशन क्या है, इसने एक तो ब्लैक बॉडी रेडिएशन जो है उसको एक्सप्लेन नहीं कर पाया, ब्लैक बॉडी रेडिएशन, बिकॉज जो हमने इसके अंदर जो स्कैटरिंग प्रोसेस जो पढ़ा था वो इंटरफेरेंस और डिफ्रैक्शन पैटर्न शो करता है, तो उसके अंदर एक ब्लैक बॉडी रेडिएशन आता है पार्ट, वो ये नहीं बता पाया था। सेकंड इज इजेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम बॉडी। सो किसी भी मेटल में से इजेक्शन उसका इलेक्ट्रॉन का कैसे होगा ये भी ये एक्सप्लेन नहीं कर पाया था। सो नाउ वी मूव ऑन टू द पार्टिकल नेचर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। पार्टिकल नेचर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। So according to this black body radiation and photoelectric effect is explained by Maxwell in 1900. So after this they processed a theory, this is known as Planck's quantum theory. So there are some postulates of this theory. So first is, if there are some electrons or energy which is emitted or absorbed, so these are in discontinuous. So ये जो energy होगी वो कॉन्टिन्यूस नहीं होगी, किसी भी डिसकॉन्टिन्यूस फॉर्म में होगी और स्मॉल पैकेट्स की फॉर्म में भी हम कह सकते हैं होगी, और इसको हम कहते हैं क्वांटा। और अगर हम फोटोन, अगर किसी एनर्जी की बात करें तो इसको हम बोल सकते हैं फोटोन। ये अगर किसी एनर्जी की बात करें तो हम इसको बोलेंगे फोटोन, और वैसे हम इसको बोलेंगे क्वांटा। एंड द सेकंड इज, जो ये क्वांटा और ये फोटोन ऑफ एनर्जी है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी न्यू के, दैट इज फ्रीक्वेंसी। सो E इज इक्वल्स टू h न्यू एंड h इज प्लैंक कांस्टेंट। नाउ द थर्ड इज, जो ये क्वांटा है यहाँ पे एनर्जी इज गिवन बाय h न्यू। So the total energy of an wave or electromagnetic radiation is given by a whole number. So this is multiplied by n into h nu. So this is called total energy of the system, and one Einstein is equals to n naught into h nu. So this is the energy of one Einstein, that is equals to n naught, that is Avogadro number, into में h nu, that is photon of energy. Now we move on to the black body radiation. Phenomenon of black body radiation. So अगर यहाँ पे कोई मेटल है, अगर हम उसको हीट करते हैं तो वहां से जो एनर्जी होती है एमिट होती है या एब्जॉर्ब होती है, तो वो जो पार्टिकल होता है वो ऑसिलेट करने लग जाता है, उसकी कुछ वेवलेंथ होती है। तो
फॉर एग्जाम्पल अगर यहाँ पे हमारे पास एक आयरन की रोड प्रेजेंट है, सबसे पहले हम उसको हीट करते हैं तो जो आयरन की जो रोड होगी उसका कलर क्या हो जाएगा, डल रेड हो जाएगा। देन अगर हम उसको टेम्परेचर अगर और ज्यादा इंक्रीज कर दे तो वो और ज्यादा रेड हो जाएगी, और भी ज्यादा हीट देंगे तो रेड हो जाएगी। फिर एक टाइम आएगा जब वो थोड़ी थोड़ी व्हाइट होनी स्टार्ट हो जाएगी आयरन की रोड, जब हम उसका टेम्परेचर इंक्रीज करते रहेंगे। तो सबसे पहले क्या होगा, डल रेड होगी, डल रेड। अगर हम टेम्परेचर और ज्यादा बढ़ाते हैं तो वो रेड हो जाएगी। फिर उसके बाद अगर और टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो कुछ देर बाद वो व्हाइट हो जाएगी। और अगर हम और भी बहुत ज्यादा टेम्परेचर अगर बढ़ाते हैं तो वो ब्लू कलर की हो जाएगी। ठीक है, तो इससे हमको क्या समझ में आता है, तो जो रेड जो होता है उसकी जो वेवलेंथ होती है वो हायर होती है, हायर वेवलेंथ। और जो ब्लू जो होता है उसकी जो वेवलेंथ होती है वो लोअर होती है। ठीक है, तो इससे हम क्या कह सकते हैं, इसकी जो वेवलेंथ है मूव कर रही है हायर वेवलेंथ टू द लोअर वेवलेंथ। सो इसी को हम बोलते हैं। और एक आइडियल बॉडी होती है जो सारी तरह की जो वेवलेंथ जो होती है वो एक्सेप्ट कर ले, उसको हम बोलते हैं आइडियल बॉडी। और इसको हम बोलते हैं ब्लैक बॉडी रेडिएशन। ब्लैक बॉडी रेडिएशन वो बॉडी होती है जो हर तरह की एनर्जी एमिट करे, उसी को हम बोलते हैं ब्लैक बॉडी रेडिएशन। और यहाँ पे सिर्फ ये एक्सेप्शनली प्रेजेंट होती है, यहाँ पे कोई भी ब्लैक बॉडी प्रेजेंट नहीं होती। अगर हम यहाँ पे ग्राफ देखें, इंटेंसिटी वर्सेस वेवलेंथ, सो यहाँ पे 1000, 2000, 3000, ठीक है। और यहाँ पे हमारी जो इंटेंसिटी है वो इंक्रीज हो रही है। सो दिस इज सेकेंड ग्राफ, ठीक है। दिस इज एट टेम्परेचर T1 एंड दिस इज एट T2। सो अगर हम यहाँ पे अगर वेव की बात करें तो यहाँ पे क्या होगा, जैसे जैसे इंटेंसिटी इंक्रीज हो रही है वैसे वैसे हमारी वेवलेंथ जो है बहुत कम है। और एक सर्टेन पॉइंट आएगा जहां पे इंटेंसिटी जो है मैक्सिमम हो गई एक वेवलेंथ के ऊपर, एंड देन जैसे जैसे वेवलेंथ इंक्रीज होती गई तो ये जो इंटेंसिटी है वो डिक्रीज होती जा रही है। और इसमें T2 इज ग्रेटर देन T1। सो ये जो ग्राफ है इंटेंसिटी बिटवीन वेवलेंथ ऑफ ए ब्लैक बॉडी रेडिएशन। Now we move on to the photoelectric effect. So what is photoelectric effect? So if there is an ejection of an electron from a metal surface is known as photoelectric effect. So कोई भी अगर मेटल का सरफेस प्रेजेंट है, अगर उसके ऊपर हम कोई भी इंसिडेंट कराते हैं लाइट जो कि बहुत ज्यादा वेवलेंथ की है या जिसकी इंटेंसिटी हाई है, तो इस मेटल सरफेस में से क्या होगा, इलेक्ट्रॉन जो है वो इजेक्ट होंगे, मतलब इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेंगे। सो इसी फिनोमिना को हम बोलते हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। और ये दिया था हर्ट्ज ने, HR हर्ट्ज ने, ठीक है। तो ये डायग्राम है, यहाँ पे अमीटर लगा है, यहाँ पे बैटरी, ये अमीटर, ये डिटेक्टर, और यहां से ये इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं, और ये कोई भी मेटल सरफेस है, और ये है इंसिडेंट लाइट। तो सबसे पहले क्या होगा, एक
लाइट है वो इसके ऊपर, जो मेटल है इसके ऊपर इंसिडेंट कराई जाएगी। तो यहां से जितने भी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इजेक्ट होंगे वो इस डिटेक्टर के हेल्प से डिटेक्ट कर लिए जाएंगे कि कितने इलेक्ट्रॉन्स इजेक्ट हुए हैं। एंड सो दिस इज द सर्किट विच इज गिवन बाय HR Hertz. Now from the photoelectric effect we can consider some postulates or some theory. So first is, अगर हमारे पास यहाँ पे बहुत ज्यादा इंटेंसिटी की लाइट होगी तो यहाँ पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इजेक्शन भी बहुत ज्यादा होंगे। तो ये किस पे डिपेंड करता है? इंटेंसिटी, मतलब हम कितनी इंटेंसिटी की लाइट प्रोवाइड कर रहे हैं। सेकंड क्या होगा? सेकंड ये होगा कि जैसे जैसे हम उसको लाइट प्रोवाइड करेंगे या जो भी हम इंसिडेंट लाइट करवाएंगे, जैसे ही इंसिडेंट लाइट मेटल को स्ट्राइक करेगी एज इट इज उसी वक्त उसमें से इलेक्ट्रॉन जो है इजेक्ट होगा। मतलब इलेक्ट्रॉन इजेक्टेड एज द लाइट इज स्ट्राइक। जब भी लाइट किसी मेटल से स्ट्राइक करेगी तो उसमें से इलेक्ट्रॉन जो है वो उसी वक्त एमिट होगा। थर्ड ये है कि जो इंसिडेंट लाइट है, जो हमारे पास जो हम जिस वेवलेंथ की लाइट को हम मेटल सरफेस से इंटरेक्ट करा रहे हैं उसकी जो वेवलेंथ है वो थ्रेशोल्ड एनर्जी से ज्यादा होना चाहिए। तो थ्रेशोल्ड एनर्जी क्या होती है? थ्रेशोल्ड एनर्जी इज द मिनिमम एनर्जी विच इज रिक्वायर्ड बाय द इलेक्ट्रॉन टू इजेक्ट फ्रॉम द मेटल सरफेस। सो ये सबसे मिनिमम एनर्जी होगी जो किसी भी इलेक्ट्रॉन को मेटल सरफेस में से बाहर आने के लिए जरूरत होती है। तो इसीलिए हमारी जो फ्रीक्वेंसी है वो ज्यादा होनी चाहिए थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी एनर्जी से। तो इसको हम डिनोट करेंगे न्यू नोट। अगर हमारी न्यू ग्रेटर देन है न्यू नोट से, तो अब हम इसको कैसे लिखेंगे? स्ट्राइकिंग एनर्जी इज इक्वल्स टू बाइंडिंग एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन। सो हमारी यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी होती है 1/2 mv²। अगर हम यहाँ पे केस कंसीडर करें तो यहाँ पे जो हमारी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है वो किसके इक्वल होगी? प्लैंक्स कांस्टेंट, दैट इज h न्यू इज इक्वल टू h न्यू। ये अभी हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा, ठीक है। तो ये तो हमारी स्टार्टिंग में वैल्यू है। अगर यहाँ पे कुछ थ्रेशोल्ड एनर्जी है तो वहां पे क्या हो जाएगा? h न्यू नोट। तो कुछ टाइम के बाद ये इसमें से माइनस हो जाएगी। सो h न्यू माइनस h न्यू नोट, ठीक है। और ये किसके इक्वल है? काइनेटिक एनर्जी की। सो काइनेटिक एनर्जी 12 mv²। तो यहां से हम h न्यू की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो ये उधर चली जाएगी h न्यू नोट प्लस 12 mv²। So this formula is striking energy is equals to binding energy plus kinetic energy of electrons. So that's for this video, guys. So thank you so much for watching this video. Hit the like button, share with your friends and subscribe to my channel. Thank you so much.